Hi everyone, this is Nisha and welcome back to my YouTube channel, guys. And if you are new over here, so welcome to in this channel. So today in this video, I'm going to talk about how to frame sentence. You know vocabulary, you know helping verb, but you are not able to frame sentences in English. So how to do it. So if you have this difficulty, means you know vocabulary, you know helping verbs, means that means you know little bit grammar, but you are not able to frame English sentences. So how to do it and how to frame English sentences? So in this video I will share with you something which gonna help you. Okay, so first of all guys, I would like to request you, if you haven't subscribed my channel, so first of all make sure subscribe to my channel. Please consider to hit the bell icon bottom so that you can get my videos notification. So first of all, you have to know little bit grammar, not more, just little bit. Why? Because of we speak our mother tongue. Okay, all the time we speak our mother tongue. So you have to know little bit grammar, only little bit, not more. And do not try to learn today vocabulary and tomorrow helping verb and next day something else related English of grammar. So do not do these things. Means you have to learn only, see only little bit. Right? आपको एक नजर ग्रामर पे डालनी है, ज्यादा नहीं आपको टाइम देना है, बस आपको एक नजर डालना है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। हम हमेशा अपनी ही भाषा बोलते हैं और हमें इस लैंग्वेज के बोलने की कोई हैबिट नहीं है। ठीक है, सो आपको बस लिटिल बिट इंफॉर्मेशन लेना है ग्रामर से रिलेटेड, बस लिटिल बिट। ओके, एंड देन यू हैव टू डू 4 थिंग्स. So first of all, you will have to listen podcast which is given in English and English show. Okay, just listen carefully 5 to 10 minutes in a day for the beginning time. And after then you have to watch English and movie, otherwise English show which is given on YouTube, where you can go and search English content and watch that carefully. Okay, and after that, doing those things, reading a book like a English book, and whether you can read newspaper, it's your wish. Okay, and after doing these things and writing in English, okay, you writing in English, that is very important. Take a notebook and whatever you thinking, like it may be you are thinking in Hindi, otherwise in your language, it doesn't matter. Try to think in English. Whatever you gonna write, whatever you can write, just write your thought in English. And for the beginning you have to do only 5 to 10 minutes this thing. Okay, so after doing these things, I mean listening, watching, reading or writing, you have to more focus to practice to speak English. Okay, so you have to focus to speak more English. More practice, the more learn. Okay, so in the beginning you are not able to frame any sentences, like where to put vocabulary, where to put helping verb, you know nothing. So don't worry. Okay, when you start listening, reading, writing and watching, these will help you framing sentences in English. Okay, because of you will observe so many things while listening, while watching, while reading, while writing. You will see and learn, observe so many things. Whatever you did in your day, just try to speak. Whatever you watch, just try to speak. Whatever you listen, just try to speak. Whatever you read, just try to speak. Whatever you do in a day, just try to speak.
When you start doing those things, after few months you will get very well result. Okay, because of you are working on English, how will you not get result good? You will get good result, you will get very well result. Okay, so please, it's only a language and you have to treat this like a language. ओके, ये सिर्फ भाषा है, ठीक है, ये एक भाषा है और इस भाषा को आप बोलने से ही सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा वोकैबुलरी जान लेते हैं, ग्रामर बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, या बहुत ज्यादा आप इन सब चीजों को सीख लेते हैं, जैसे ग्रामर वोकैबुलरी आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप साथ बोल रहे हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और ये आपको बोलने से ही आएगा। मीन्स जब आपने अपनी भाषा सीखा तो क्या आपने वहां पर कोई ग्रामर सीखी थी? या फिर जब हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हिंदी बोलने से पहले हमने ग्रामर सीखी थी और फिर इंग्लिश, फिर हमने हिंदी स्टार्ट किया था बोलना? नहीं, पहले हमने सुनना स्टार्ट किया, फिर हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, एंड देन हमने ट्राई किया हिंदी बोलने के लिए, फिर हम बोलने लगे, धीरे 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 करके हिंदी बोलने लगे और ऐसे ही हम अपनी मदर टंग बोलने लगे। सो जब आपको लगता है कि मुझे वोकैबुलरी पता है और मुझे हेल्पिंग वर्ब्स भी पता है, लेकिन जब मैं बोलने जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ, मैं सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाता। ठीक है, सो आप फ्रेम इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अपनी भाषा हर टाइम बोलते हो, ऑल द टाइम यू स्पीक योर मदर टंग, योर लैंग्वेज। ठीक है, आपने अपना माइंड अपनी लैंग्वेज से ट्रेंड किया है और जब आप इंग्लिश बोलने जाते हो तब आप भूल जाते हो, आपको पता भी है। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ड वोकैबुलरी पता है, लेकिन आप जानते हुए भी आप फ्रेम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस टाइम पर आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है, आपको पता होने के बावजूद आप भूल जाते हो कि कहाँ पर वोकैबुलरी अब मैं फील करूं और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ड फील करूं, कहाँ पे मीन्स सब्जेक्ट को फील करूं, आप सब कुछ भूल जाते हो पता होने के बावजूद। सो इसमें आपको सिर्फ अपने माइंड ट्रेन करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली इंग्लिश बोलना है, आपको डेली इंग्लिश में इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना है, 5 to 10 मिनट्स तक आपको लिसनिंग करनी है, 5 to 10 मिनट्स तक आपको रीडिंग करनी है, वॉचिंग करनी है इंग्लिश में। जब आप रीडिंग, लिसनिंग और वॉचिंग, राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आप उस टाइम पर आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होंगे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इनपुट ले रहे होंगे अपने माइंड में। ठीक है, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं इंग्लिश में, जो कुछ भी आप रीड करते हैं इंग्लिश में, जो कुछ भी आप इंग्लिश में सीखते हैं, वो इनपुट आप ले रहे होते हैं। ठीक है, सो आप जब इनपुट ले रहे होते हैं सो आपको आउटपुट भी देना है। जो कुछ भी आपने सीखा या सुना, आपको उसे प्रैक्टिस में बोलना है। ठीक है, आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे, आपको माइंड ब्लैंक हो जा रहा है, सो 2 मिनट आप मीन्स ब्रेक लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेकर और जितना बोल सके बस उतना ही बोलिए। फर्स्ट टाइम में आपका माइंड ब्लैंक होगा। I would like to tell you about myself. I also learnt grammar around 6 to 8 months. Okay, but when I tried to speak English, I was unable to. I couldn't even remember anything like a does do, where I put it. I was unable on that moment. ठीक है, जो मैंने भी 6 से 8 महीने तक मैंने ग्रामर सिर्फ सीखा कि मैं ग्रामर सीख लूंगी तो फटाका में बोलूंगी इंग्लिश, बट क्या हुआ जब मैं बोलने गई सो मैं टोटली ब्लैंक हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पता था मुझे कि डज कहाँ पे यूज लगेगा, डिड कहाँ पे लगेगा, हैज कहाँ पे लगेगा, इज एम आर कहाँ पे लगेगा, पता होने के बावजूद मैं सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रही थी, मैं सेंटेंस बोल ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रामर सीखने पे फोकस किया, ना कि बोलने पे।
ठीक है। सो इस भाषा को आप टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सीख सकते हो कि आज वोकेबुलरी सीख लेते हैं, कल इजेमर सीख लेते हैं और परसों कुछ और सीख लेते हैं। सो आप टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सीख पाओगे। आपको एक नजर डालने के लिए मैंने इसलिए बोला कि आप एक नजर देख लीजिए ग्रामर को, बस थोड़ा सा देखकर एक इंफॉर्मेशन लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। सो आपको जरा सा इंफॉर्मेशन लेना है एंड उसके बाद आपको डेली सुनना है, इंग्लिश में लिसन करना, राइट करना है, रीड करना है एंड वॉच करना है एंड उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। जब आप इन सब चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। ये पता है आपको, जब मैंने इंग्लिश बोलना चाहा, सो ऐसा होता है कि कभी हम बोलना चाहते हैं डज, है ना, हमें पता होता है कि वो खेलता है, ही प्लेज। मुझे पता है ही प्लेज, वो नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले। मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे डज लगेगा, यहाँ पे प्लेस, प्ले के साथ यस लगेगा। लेकिन क्या होता है, जब प्रैक्टिस करने की बारी थी मेरे जुबान से निकल ही नहीं रहा था। कभी मैं डू निकल जाता, कभी डू यूज कर लेती, कभी डिड यूज कर लेती एंड देन मेरा माइंड ऑप्शन देता है, आपको बताता है कि नहीं आपने गलत यूज किया है। मुझे यहाँ पर डस नहीं यूज करना था, मुझे यहाँ पर डू यूज करना था, मुझे यहाँ पर डिड यूज करना था, मुझे यहाँ पर हैज यूज करना था। वो क्या होता है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हो, सो आपका माइंड क्या होता है, ट्रेंड होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। और जब ट्रेन होता है वो धीरे धीरे, सो जब आप गलत बोलते हो सो आपका माइंड आपको बताता है कि यहाँ पे डज नहीं लगाना है, यहाँ पे डू लगाना है, यहाँ पे डिड नहीं लगाना है, यहाँ पे हैज लगाना है। सो आपका माइंड आपको सपोर्ट करने लगता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आप सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हो। सो यहाँ पर बस एक ही चीज आपको अप्लाई करनी है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सीखेंगे और सीखने के साथ साथ आप देखेंगे कि आप सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर पा रहे हो, ठीक है। सो आप ये मत सोचिए कि मैं ग्रामर सीख लेता हूँ उसके बाद स्टार्ट करूंगा, वोकेबुलरी सीख लेता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा, या फिर मुझे तो आता ही नहीं है सेंटेंस फ्रेम करने तो कैसे बोलूं। बस आपको लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, एंड वॉचिंग, आप ये सब करना स्टार्ट कीजिए, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। डू यू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग? यस, यू brush your teeth in the morning because of it's part of your life to brush your teeth. Okay, everyone brush their teeth because it's become our part of life and then we do as it. If you do these things, listening, reading, writing and watching at our and as well as practicing to speak English, do only 21 days, you will get very well result. ओके, सो प्लीज डू इट। गारंटी देती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता, वोकेबुलरी के बारे में या फिर इजेमार या कोई हेल्पिंग वर्ब के बारे में, सो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड वॉचिंग एंड साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग अगर आप करते हो ना, आपको कुछ नहीं पता, आपको सेंटेंस भी फ्रेम नहीं करने आता, सो आप इन चारों चीज को कीजिए, मतलब लिसनिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए एंड वॉचिंग कीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए रोजाना। मीन्स डेली आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश बोलने की। सो आप 21 डेज ऐसा करके देखिए और आप देखेंगे आफ्टर 21 डेज गॉन यू विल सी वेरी वेल रिजल्ट। ओके, सो आप ऐसा कीजिए, आपको इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना आ जाएगा और साथ इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भाषा है, आप इसे टुकड़ों में नहीं सीख सकते हो, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी माइंड को ट्रेन करना है, डेली ट्रेन करना। जब आप ऐसा 21 डेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करने लगा है, आपका माइंड आपको सपोर्ट करने लगा है, बताने लगा है, आपको इन्फॉर्म करने लगा है कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, कौन सा वोकेबुलरी यूज करना है, आप खुद ही आपको पता चलने लगेगा। क्योंकि जब आप वॉचिंग करेंगे या लिसनिंग करेंगे या रीडिंग करेंगे,
है ना। एंड राइटिंग करेंगे तो आपको उसमें नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए वोकेबुलरीज मिलेंगे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, है ना। आपको बहुत कुछ मिलेगा, फ्रेज मिलेगा, आइडियम्स मिलेंगे। सो सब क्या होगा, जितना आप इनपुट कर पाओगे आप इनपुट करते जाओगे, और इनपुट के साथ साथ आप उसे आउटपुट करते जाओगे। उसमें आप अपने माइंड को डेली ट्रेन करोगे, डेली इंफॉर्मेशन अपने माइंड में आप डालोगे, डेली इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में पुट कर रहे होगे। सो उसमें आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत सी चीजें आप लर्न करोगे। एंड जितना आप लर्न करोगे आप उतना ही ज्यादा इंग्लिश बेहतरीन तरीके से बोल पाओगे। सो प्लीज आप ऐसा